we are going to work on a new chapter, and that chapter will be from paper वन प्रोग्रामिंग सूडो कोड्स के ऊपर हम लोग वापस से आएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पेपर वन स्टफ। लेकिन जितनी आप लोग की बेसिक्स बनानी थी वो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग की बेसिक्स कवर अप कर ली है, ठीक है। लेकिन स्टिल अभी सूडो कोड्स में और भी बहुत सारे काम है, वो हम लोग करेंगे आराम से when we will be revising the pseudocode stuff, but the basics is clear, is quite clear. So आज जो हम लोग क्लास चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, this chapter is called memory. What we call this chapter? We call this chapter as memory. So let's see. हाँ, O level ESTC. So let's kick off with this chapter. This chapter is called memory और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हमारे पास। So one by one we are going to look into every device, every aspect. But before we move forward, let me draw a small diagram for everyone so that you should have an understanding that which topics we are going to discuss in this chapter. So whenever we talk about memory, so memory is actually class divided into three parts. The first part is called the primary memory, and you all know that primary memory is also called the main memory. After primary memory, we are having another type of memory class that is called secondary memory. And when we talk about class secondary memory, we will be looking into the examples as well. And the third memory class is called offline storage. And although it is not included as a part of your syllabus, but थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे about cloud storage as well. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग थोड़ा सा पार्ट ऑफ फ्रॉम सिलेबस से थोड़ा सा और जाके हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे अबाउट द क्लाउड स्टोरेज एज वेल. So when we talk about the primary memory class, primary memory को further divide किया जाता है into two parts. The first part class is called RAM and the other part class is called ROM. There is further divisioning class when we talk about RAM. तो RAM को भी further divide किया जाता है into SRAM and DRAM. And when we talk about class ROM, तो ROM को भी divide किया जाता है further into PROM, EPROM एंड EEPROM. अब सब बात करेंगे कि ये EROM क्या है, PROM क्या है, what are the abbreviation and all that. सारी बातें करेंगे one by one. When we talk about class secondary storage, तो secondary storage के अंदर हमारे पास दो डिवाइसेस आती हैं. One is called hard disk drive and the other device is called solid state drive. And when we talk about class the offline storage, तो offline storage में हमारे पास आती है like class CD, DVDs, Blu-ray and so on, SD card, XD card. Further, we are having USB. We are having flash memory. Both are same. Flash memory. We are having class portable hard disk. हाँ, मूसा ने बोला सर floppy disk. Yes, that will be counted in offline storage, मूसा. But that is quite obsolete. अब तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पे. ठीक है बेटा, काफी obsolete हो गई है, लेकिन that's why we are not going to talk about that. So these are the class
things that we are going to study throughout this chapter. Starting off with the primary memory, then class we are going to see RAM, ROM. We are going to see secondary memory. In that, we are going to look into working of a hard disk, working of a solid state drive, working of CDs, Blu-rays, DVDs, and the offline storage and all that mechanism we are going to talk about. तो क्लास आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं, किक ऑफ करते हैं विद द प्राइमरी मेमोरी एंड द फर्स्ट क्लास प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड रैम. रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. और क्लास पहले ही मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम रैम के बारे में बच्चों वाली बातें यहाँ पे लिख देता हूं. अब यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग सर ये बच्चों वाली बातें क्या हैं. तो बच्चों वाली बातें क्लास वो हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, जो आप सबको ऑलमोस्ट 90% बच्चों को पता ही होती है. ठीक है, जो बातें 90% बच्चों को पता होती है वो रैम के बारे में मैं यहाँ पे पहले तो लिख देता हूँ आराम से खामोशी से. दैट रैंडम एक्सेस मेमोरी क्लास कैसी मेमोरी होती है? इट्स अ वॉलेटाइल मेमोरी. कैसी मेमोरी है? ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है. वॉलेटाइल का मतलब होता है क्लास टेम्पररी, और टेम्पररी का मतलब होता है क्लास व्हेन वी टर्न ऑफ आवर सिस्टम all data is being removed. ठीक है, तो क्लास ये आपके पास एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है. दिस इज अ वॉलेटाइल मेमोरी like temporary memory, and whenever you turn off your system all the data is being removed. सारा डेटा रैम से रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, एक और बच्चों वाली बात मैंने यहाँ पे लिख दी दैट वी कैन रीड एंड राइट बोथ इन रैम. रैम में क्लास रीड और राइट आप लोग दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. यू कैन इवन रीड क्लास रीड राइट दोनों ऑपरेशन आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं इन रैम. फर्दर क्लास तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज सॉफ्टवेयर इन रैम. नाउ क्लास व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर इन रैम, एंड मैं चाहूंगा आप लोग मुझे इस बात का जवाब दें. आप लोग मुझे बताएं क्लास व्हिच सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर इन रैम. रैम में क्लास किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? तो आप लोग मुझे बताएं क्लास कि किस टाइप के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं. ओके, मूसा ने बताया कि सर सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, राइट जवाब, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली आंसर बेटा. आई रियली वांट कि आप लोग आंसर करें. आप लोग मुझे बताएं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर इन अ रैम. किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? यू कैन राइट टू मैक चैट. एनीवन? ठीक है, मूसा ने क्लास एक जवाब दिया, लेकिन अगेन दैट इज नॉट द कंप्लीट आंसर. दैट इज नॉट द कंप्लीट आंसर. ओके क्लास, आप लोग कभी गेम खेलते हैं. ठीक है, क्या करते हैं आप लोग? गेम खेलते हैं. तो आप लोग जब भी गेम खेलते हैं हर गेम की सीडी के ऊपर एक चीज लिखी हुई होती है दैट इज के टू रन दिस गेम you need 8 GB of the RAM, you need 4 GB of the RAM, you need 16 GB RAM. ये रिक्वायरमेंट लिखी हुई होती है हर गेम के ऊपर. ये रिक्वायरमेंट क्यों लिखी हुई होती है? रिक्वायरमेंट इसलिए लिखी हुई होती है क्लास बिकॉज whenever you are going to play a game, that game is loaded in your RAM. That is not the case only with the games. Class, any application software like Word, Excel, Photoshop, Google Chrome, any application software that is running in your system is going to be loaded in your RAM. तो क्लास कोई भी चीज अगर आप लोग को एग्जीक्यूट करनी है फर्स्ट दैट इज लोडेड इन रैम एंड देन इट इज एग्जीक्यूटेड, देन इट इज रन. सिमिलरली आप लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इवन दैट सॉफ्टवेयर इज फर्स्ट लोडेड क्लास इन योर रैम एंड देन क्लास इट इज एग्जीक्यूटेड. ठीक है,
सो मैंने यहाँ पे लिखवाया क्लास द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द रैम, जो अब आप लोग को याद रखना है, ऑल एप्लीकेशन as well as all application as well as system softwares are first loaded in RAM and then they are executed. जी ईसा बेटा, disk drivers जो है एक्चुअली दे आर disk drivers जो है they are actually included in utility software. So utility software are again they also need to be first loaded in RAM and then they are executed. वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके पास एक्चुअली चला कौन रहा होता है, वो आपके पास चला रहा होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही बाय इटसेल्फ कहाँ पे लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बाय इटसेल्फ कहाँ पे लोड होता है आपका रैम के अंदर। ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो क्लास मैंने यहाँ पे बता दिया एप्लीकेशन ऑल एप्लीकेशन एज वेल एज system softwares system softwares are first loaded in ram and then class they are executed. ठीक है, तो ये बात याद रखिए क्लास, ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर आर फर्स्ट लोडेड इन रैम एंड देन दे आर एग्जीक्यूटेड। सो ये बात हम लोगों ने करी क्लास अबाउट रैम। अब रैम के अंदर दो टाइप्स हैं, वन टाइप इज कॉल्ड एस रैम and the other type class is called DRAM. So you should know about both the types. आपको दोनों टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। When we talk about class SRAM, this is static RAM, and when we talk about class dynamic RAM, oh sorry DRAM, so this is called dynamic RAM. When we talk about class when we talk about static RAM and dynamic RAM, पहले हम लोग बात कर लेते हैं about the static RAM. Static RAM जो होती है ना क्लास, this is made up of flip flops. अब आप लोग बोल लोगे सर ये क्या चीज आ गई फ्लिप फ्लॉप, वी हैव हर्ड द नेम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो क्लास सिंपल कर देता हूं मैं आप लोग के लिए, फ्लिप फ्लॉप आर एक्चुअली नैंड गेट्स। जो हम लोगों ने लॉजिक गेट्स के अंदर नैंड गेट पढ़े थे, तो नैंड गेट्स को एक्चुअली वी कॉल देम फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, आप लोग को दिखाता भी हूं, A2 में पढ़ाता हूं मैं बच्चों को, A2 में टॉपिक पढ़ाता भी हूं मैं। हाई ब्रो, A2 हार्डवेयर का चैप्टर होगा हमारे पास, हियर यू गो, हियर यू गो। तो यू कैन सी अ फ्लिप फ्लॉप, ये आपके पास क्या एक नैंड गेट है, तो नैंड गेट की कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं एंड दिस सर्किट इज यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लास एस रैम, तो एस रैम के अंदर दे आर मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या है भाई, नैंड गेट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डी रैम, तो डी रैम इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, तो क्लास डी रैम आपके पास किसकी बनी हुई होती है, ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स से मिलकर बनती है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, डी रैम। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर्स क्या करते हैं, अपने अंदर चार्जेस स्टोर करते हैं। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने,
कैपेसिटर्स क्या करते हैं, अपने अंदर चार्जेस स्टोर करते हैं। सो दैट्स व्हाई डी रैम को आपको बार बार क्लास क्या करना पड़ता है, डी रैम को आप लोगों को कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करना पड़ता है, नीड टू बी रिफ्रेश्ड कॉन्स्टेंटली। ठीक है। और क्लास एस रैम को आपको पास डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड। और आखिरी बात क्लास, आपके पास एस रैम जो है वो ज्यादा फास्ट होती है, फास्ट एज कंपेयर टू डी रैम एंड क्लास स्लो एज कंपेयर टू एस रैम। ठीक है। तो क्लास दीज आर द डिफरेंसेस दैट यू शुड नो, दैट यू शुड रिमेंबर अबाउट द एस रैम एंड द डी रैम। और मैंने थोड़े ज्यादा करके आप लोगों को क्लास ज्यादा डिटेल के अंदर ही चीजें बता दी है, इससे ज्यादा आपके पास एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, आ सकता। ठीक है। इससे ज्यादा आपके पास एग्जाम के अंदर क्लास चीजें एग्जामिनर नहीं पूछेगा। ठीक है। तो मैंने ठीक है। और अगेन द पॉइंट कम्स, दैट इज सॉफ्टवेयर इन ROM। नाउ क्लास लेट्स टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर इन ROM। सो नाउ एनीवन, कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा क्लास कौन सा सॉफ्टवेयर होता है ROM के अंदर? एनीवन, यू कैन राइट टू मैक चैट बेटा, मुझे बताएं जरा विच सॉफ्टवेयर इज इन ROM। ROM में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, जरा मुझे बताएं। विच सॉफ्टवेयर इज देयर इन ROM? एनीवन, मूसा, इजा, उमर, अलीजा, रियान, एनीवन, कोई बच्चा बताए जरा मुझे विच सॉफ्टवेयर। गलत ही जवाब बता दें, कुछ तो बताएं। ठीक है। तो क्लास आई वांट आंसर्स,